या तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, अगर वो किसी तरीके से फेल होता है तो वो ट्रांजेक्शन शुड बी रोल्ड बैक। रोल्ड बैक होने का मतलब उसने डेटाबेस में जो भी चेंजेस करे हैं वो सारे चेंजेस जो है दे शुड बी अनडन फ्रॉम द परमानेंट डेटाबेस, वो परमानेंट डेटाबेस में नहीं होने चाहिए। सो दैट इज व्हाट एटॉमिसिटी इज। So any transaction will be called atomic if it is executed, it will be executed completely, or it appears that it has not executed। अगर वो फेल होता है तो डेटाबेस को ये अपीयर होना चाहिए कि it has not executed at all। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप एटीएम से मनी विड्रॉ करते हो, समटाइम्स इट हैपेंस दैट डिस्पेंसर हैज नॉट डिस्पेंस्ड द मनी बट योर अकाउंट हैज बीन अपडेटेड। सो इफ यू विड्रॉ 1000 फ्रॉम योर अकाउंट, वो सारा प्रोसेस हो गया। सो व्हाट हैपेंस, यू गेट अ मैसेज फ्रॉम द बैंक दैट योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 1000 rupees, but in reality what happens, the money has not been dispensed to you। So what happens after, means a fixed time or fixed regular interval, the ATM machine simply counts its balances which are into the ATM, and then it simply counts all of the withdrawals and all of and then it calculates, और जो ट्रांजेक्शन फेल होता है उसको वो रोल बैक करता है। सो इट रिकॉर्ड्स दैट this transaction took place and the money was not dispensed, that means the transaction failed at the dispensing time। सो व्हाट विल हैपन, वो अपने बैलेंस में उतना अमाउंट जितना डिस्पेंस्ड होता है उतना अमाउंट वो ऐड कर लेता है, और जिस अकाउंट से वो डेबिट हुआ रहता है उस अकाउंट को फिर से रोल बैक करके वो इनिशियल बैलेंस पे लेके आ जाता है, और तब आपके पास एक मैसेज आता है कि द सेम अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। So this is what atomicity means। If any transaction is happening, it should completely happen or it should not happen at all। So उसका partial execution नहीं होना चाहिए ट्रांजेक्शन का। ठीक है। Then consistency requirement simply says that any transaction should always preserve the consistency of the database। That means the state of the database before the transaction and the state of the database after the execution of the transaction should be कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। यहाँ पे इक्वल नहीं कह सकते, बिकॉज अगर मान लो ए का अमाउंट जो है वो 1000 है और मैंने उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो ऑब्वियसली जो कंसिस्टेंट स्टेट होगा, सो दैट विल बी ए माइनस द अमाउंट विड्रॉल। सो इफ ए इज हैविंग 1000 एज अ बैलेंस एंड आई विड्रॉ 200 rupees, so the prior state of database was A's balance was 200 rupees, and after the transaction, if the A balance is 200 minus the withdrawal amount, or 1000 minus 200 800, then we say that the states are consistent with each other because we have taken some money from the account। So we do not talk about equality of states, we talk about consistency of states। So what has happened, it should be reflected correctly in the final state of the database, that is what consistency states। Then the isolation, it simply says that for every pair of transaction Ti and Tj, it appears to Ti that either Tj finished execution before Ti or Tj started execution after Ti। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन को ये लगना चाहिए कि वो अकेले काम कर रहा है, उसके जब जितनी देर वो यूज कर रहा है सिस्टम को उतनी देर कोई और ट्रांजेक्शन नहीं यूज कर रहा है। जितने भी ट्रांजेक्शन पैरेलली चल रहे हैं वो या तो उससे पहले यूज कर चुके हैं या उसके बाद यूज करेंगे। दैट इज व्हाट आइसोलेशन इज। दैट मींस इट शुड अपीयर टू एवरी ट्रांजेक्शन दैट इट इज एग्जीक्यूटिंग अलोन। ठीक है। एंड देन ड्यूरेबिलिटी, इट सिंपली स्टेट्स दैट means whenever a transaction makes changes to the database, the changes made or the successful changes made should persist in the database even after system failures। मतलब एक बार ट्रांजेक्शन ने अगर कमिट कर दिया तो डेटाबेस के अंदर वो डेटा प्रिजर्व्ड रहना चाहिए, अगर सिस्टम फेल हो जाता है तो भी। So that is what durability is। So this is very important properties which every transaction must satisfy to result into or to ensure the consistency of the database। So consistency of the database is that which we cannot actually compromise with।
So every time whatever we are going into to do into a database, we'll always be taking care of the consistency of the database. Then we talked about the various states of the database, and I said any transaction which starts its execution, it enters a it enters into a active state. So any transaction at start it will enter into a exit active state. Active state, that means since it started its execution of the first statement until it execute its last statement, उस दौरान ये एक्टिव स्टेट में होगा. एक्टिव स्टेट से अगर किसी पॉइंट में हमें लगता है कि इस ट्रांजेक्शन को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, जैसे आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, पहले एटीएम मशीन ये फाइनलाइज करता है कि इस ट्रांजेक्शन को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. So it will enter into a failed state. So if it is decided that the transaction cannot be further executed properly, so the transaction enters into a failed state. Otherwise, if the transaction completes successful execution of its last statement, it enters into a partially committed statement. पार्शली कमिटेड के बाद उसको क्या करना है, जो भी उसने चेंजेस करे हैं डेटा आइटम्स के ऊपर, उसको फाइनल डेटाबेस में लिखना है. और ये जो फाइनल डेटाबेस में हम कमिट करते हैं, उसको हम उसके बाद ट्रांजेक्शन कहाँ चला जाता है, कमिटेड स्टेट में चला जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया था, और उसने जो भी उसने डेटाबेसेस में चेंजेस किए थे, वो परमानेंट डेटाबेस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके हैं. So that is what committed state. From the partially committed state, that means while the transaction is making the final writes to the database, यानी commit करने के process में है, उस दौरान भी किसी तरह का failure आ सकता है, और यहाँ से भी वो particular transaction failed state में जा सकता है. और जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड स्टेट में जाता है, तो उसके बाद इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रोल दैट ट्रांजेक्शन बैक. दैट मीन्स अब तक उसने जो भी डेटाबेस के अंदर चेंजेस किए हैं, उसको अनडू करना है. तो अगर ए की वैल्यू इनिशियली से द वैल्यू ऑफ ए वाज v0 इनिशियली, एंड द ट्रांजेक्शन टी चेंज्ड, ट्रांजेक्शन टी ने इस वैल्यू को v1 कर दिया था, और उसके बाद वो फेल हो गया बीच में, तो व्हाट शुड हैपन, while aborting the transaction should be rolled back. That means the value of v1 should be replaced by the value of v0. That is what rollbacking a transaction is. So these are the states. So the committed state and the aborted state, they are known as terminal states of a transaction. And active state is called the initial state of a transaction, whereas partially committed or failed state, they are called as intermediary states of a transaction. So whenever a transaction starts, it is sure that either it will fail or it will commit. So if it commits, that is a successful termination of the transaction, and if it is aborted, that means the transaction has been unsuccessful. So we talked about concurrent execution. So we allow transactions to execute parallelly or at the same time simultaneously, and just to increase the processor and disk utilization, and to reduce the average response time of the transaction. So along with this, we also need some mechanism which can control the concurrency, and they are called concurrency control mechanism. This we'll be discussing in the 5th unit when we talked about concurrency control. And then we talked about schedules. So I said if there are n number of transactions executing simultaneously, so I cannot allow any transaction to execute at any time. So what I need to do is I need to prepare a chronological ordering of the statements of the transaction, and this chronological ordering of the statements of a transaction is called schedule. So yesterday I explained these schedules. They can be two types of schedule. One is a serial schedule and another one is a concurrent schedule. So in serial schedule, a transaction, all the statements of one transaction will come together, and then the statements of other transaction will follow. So the sequence may differ. So agar T1 and T2 are the two transactions participating in the schedule, so
This schedule can have two types of serial schedule. One is T1 followed by T2 and another one is T2 followed by T1. So this schedule means this is a serial schedule where all the transactions of all the instructions of T1 are executed first, and then the instructions of T2 follows. So in case of T2 to T1, all the transactions of T2 will be executed first, and after that all the transactions of instructions of T1 will be executed. So this is what a serial schedule is. While writing any schedule, we have to take care of some points. That means if T1 and T2 are the transactions which are participating in any schedule S, then we should ensure that all the statements which are in schedule S should belong to T1 and T2 first thing. Then all of the instructions of T1 and T2 should be in S. There should not be any transaction, a statement of any transaction which is not in S. And then finally, the respective ordering of the statements of one transaction should be maintained. That means I can for T1 read A, then followed by A is equal to this, and then followed by write A, then followed by read A, then followed by B is equal to this. ये सीक्वेंस मेंटेन होनी चाहिए शेड्यूल के अंदर ही. हाँ, ये हो सकता है कि रीड ए के बाद ये वाला रीड ए आ जाए T2 का. ये सारी इंटरलिविंग हो सकती है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन के सारे स्टेटमेंट्स का रेस्पेक्टिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. So we have these two serial schedules. Then another type of schedule is a concurrent schedule, in which we can say that any schedule is a concurrent schedule if the instructions of the participating transactions, they are interleaved in their executions. That means they are mixed with their execution. So in this case, if you say there are some T1, some instructions of T1 executed first, and then they are followed by some instructions of T2, then again followed by some instructions of T1, and then followed by some instructions of T2. So what will happen during this? At first ये execution sequence है, execution number 1 2 3, फिर 4 पे कौन आ गया, 4 पे T2 आ गया. सो 4 पे T1 सस्पेंड हो जाएगा उसके लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना. 4 5 6 7 के लिए T2 चलेगा, फिर 8 9 10th एग्जीक्यूशन पे T1 आ जाएगा, एंड सो ऑन. सो दिस टाइप ऑफ शेड्यूल इज कॉल्ड अ कंकरेंट शेड्यूल. और जब भी हम कंकरेंट शेड्यूल को रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस: T1, then followed by T2, then followed by again T1, then followed by again T2, and then complete. तो इस केस में देखो तो ये कंकरेंट शेड्यूल है. कुछ पार्ट T1 चल रहा है, फिर कुछ पार्ट T2 चल रहा है, फिर T1 चल रहा है और फिर T2 चल रहा है, ठीक है ना. नाउ इफ यू सी these two schedules, एक तो शेड्यूल 1, the following schedule is not a serial schedule but it is equivalent to serial schedule S1. ये क्यों कहलाता है? देखो इसमें क्या है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कोई भी दो शेड्यूल्स, दे आर मींस इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ दे प्रोड्यूस द सेम एंड डेटाबेस स्टेट. फाइनल डेटाबेस स्टेट जो है, अगर दोनों शेड्यूल्स का सेम है तो हम कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द शेड्यूल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. अब इस केस में देखो, अगर मैं ए की वैल्यू को 100 मान लेता हूं और बी की वैल्यू को मैं से 200 मान लेता हूं, तो व्हाट विल दिस डू? इट विल प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ ए एज 50. इसको क्या मिलेगा? इसको ए की वैल्यू 50 मिलेगी. Then what will it do? It will increment A by 10%. So इसको वैल्यू क्या हो जाएगी? It will be 55 now. ठीक है. नाउ इस केस में B की वैल्यू इसको मान लो 200 मिलेगी यहाँ पे जब वो रीड करेगा तो, और फिर 50 ऐड करते ही B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250.
देन व्हाट विल हैपन, यहां पे बी की वैल्यू 250 मिली, फिर इसने 250 में क्या करा, टेम्प को ऐड करा, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ ठीक है, इट वाज नॉट दिस, इट वाज 45, देन it will become 45 because we are calculating temp as a into this 10% and then we are subtracting temp from a, so a की वैल्यू यहाँ पे 50 मिली, तो 5 has to be subtracted, so it will become 45 here. Then what is it is doing, it is calculating b is equal to b plus temp, that means again it will add to 5, so b becomes 255. So after end of this schedule, the value of A will be 45 and the value of B will be 255. ठीक है, so इस समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? यस सर। Okay. So value of A will be 45 and value of B will be 255. So अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो वैल्यू ऑफ A प्लस B इज 300 और इनिशियली A और B की वैल्यू एडेड क्या थी 300, दैट मींस ये जो शेड्यूल है ये हमारे डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में रख रहा है, इनिशियली जो बैलेंस था वो बैलेंस हमारा अभी भी टोटल बैलेंस है। अब ये क्या ये शेड्यूल जो है हमारे सीरियल शेड्यूल 1 के इक्विवेलेंट है कि नहीं, अगर ये इक्विवेलेंट है तब तो हम कहते हैं मतलब इक्विवेलेंट कब होगा, जब डेटाबेस स्टेट सेम प्रोड्यूस करे ये। तो अब इस केस में ए की वैल्यू को हमने 100 लिया था यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 100 मिली, हमने ए में से 50 माइनस कर दिया तो ए की वैल्यू 50 हो गई। अब हमने ए की वैल्यू को 50 कर दिया डेटाबेस के अंदर, देन बी की वैल्यू हमने 200 माना था तो बी की वैल्यू 200 हो गई, बी में 200 ऐड कर दिया तो अब बी की वैल्यू 255 हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे ए की वैल्यू इसको 50 मिली क्योंकि ऊपर वाले ने 50 क्रिएट करा था। अब टेम्प की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट करा इट बिकम्स 5 and if I subtract a minus temp it becomes say 45। सर हाँ सर बी तो 200 रीड किया था ना हमने, 200 रीड किया था और उसमें हमने 50 ऐड कर दिया, यहाँ पे 250 होगा 255। 255 हो गया, यस और नो? ओके सर। ठीक है ना, बी की वैल्यू हमने 200 माननी थी ना पिछले एग्जांपल में, तो अब यस क्या ए की 100 मानी थी, 100 में से 50 माइनस किया तो ए की वैल्यू 50 हो गई, 50 हो गई। बी की वैल्यू 200 थी, हमने 200 में क्या करा बी इक्वल टू बी प्लस 50, तो ये क्या हो गई 255 हो गई। ओके सर। सॉरी 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 वेरी सॉरी, 250 हो गई, आई एम वेरी सॉरी, ओके सर। वो मुझे वही आंसर याद था वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना, 250 हो गई है, ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। देन उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग, अब जब ये वाला ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो इसको ए की वैल्यू क्या मिल रही है 50 मिल रही है क्योंकि इसने ए 50 क्रिएट करा था और इसने क्या करा उसमें 10% कैलकुलेट करा और उसको माइनस कर दिया, तो नाउ ए की वैल्यू कितनी हो गई 45 हो गई। अब इसको जो बी की वैल्यू मिली वो बी की वैल्यू कितनी मिली 250 मिली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी ने 250 यहाँ पे क्रिएट करा था। अब बी में क्या करना है मुझे टेम्प की वैल्यू यानी कि 5 ऐड कर देना है, तो अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी हो गई 255। सो अगर आप देखोगे तो ये शेड्यूल भी ए की फाइनल वैल्यू को 45 क्रिएट कर रहा है और बी की फाइनल वैल्यू को 245 क्रिएट कर रहा है, 255 क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल बैलेंसेस को ऐड करो तो 100 प्लस 200 300 था और यहाँ भी अगर ऐड करोगे तो 300 ही आ रहा है, दैट मीन्स अगेन दिस शेड्यूल इज प्रोड्यूसिंग अ कंसिस्टेंट स्टेट। लेकिन और क्या इसमें एडिशनल वो है कि ये सीरियल शेड्यूल S1 और कंकरेंट शेड्यूल S3 इन दोनों का जो फाइनल स्टेट क्रिएट हो रहा है डेटाबेस का वो सेम है, that means both of them are creating final value of A as 45 and final value of B as 255, that means
हम शेड्यूल को इस चाहे उस तरह से सीरियली एग्जीक्यूट करें और चाहे इस तरह से कंकरेंटली एग्जीक्यूट करें, इन बोथ ऑफ द केसेस we can say that the states being produced are same, and therefore schedule number 3 and schedule number 1 are said to be equivalent schedule. ठीक है? yes or no? यस सर। ओके, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि इक्विवेलेंट शेड्यूल होता क्या है, तो इन दैट केस वी कैन से टू शेड्यूल्स आर इक्विवेलेंट if the transaction participating in both of them are same. फर्स्ट कंडीशन, जो ट्रांजेक्शन वहां पार्टिसिपेट कर रहा है वही ट्रांजेक्शन यहां भी होना चाहिए, दैट इज T1 T2। ट्रांजेक्शन नेम की बात नहीं कर रहा हूं, T1 मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस वही होना चाहिए जो उस वाले में है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि दोनों शेड्यूल के अंदर जो ट्रांजेक्शंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, किसी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली द फाइनल स्टेट ऑफ डेटाबेस प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द शेड्यूल शुड बी equal to each other, or they should be same, and then we say that these two schedules are equivalent schedule. And when any schedule which is concurrent schedule and it is equivalent to a serial schedule, then we say that the given schedule is a serializable schedule. ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत घूमेगा आपके पास। आगे से हम सीरियल शेड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे सीरियलाइजेबिलिटी की। तो अगर कोई कंकरेंट शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं कि दैट द गिवन शेड्यूल और द गिवन कंकरेंट शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें सीरियलाइजेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती क्यों है, हम क्यों किसी शेड्यूल को सीरियलाइजेबल बनाना चाहते हैं? वो इसलिए कि अगर नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीरियली होगा तो मेरा डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में जाएगा। T1 ने पहले रीड कर लिया, फिर T2 ने रीड करा, फिर T3 ने, तो ये सीरियली चलेगा। तो हमेशा डेटाबेस T1 प्रोड्यूस करेगा, उसका आउटपुट जो है T2 को एज इनपुट मिलेगा, T2 का आउटपुट T1 को एज इनपुट मिलेगा। तो डेटाबेस हमेशा सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन विल ऑलवेज एंश्योर दैट द डेटाबेस इज इन कंसिस्टेंट स्टेट, इट इज गारंटीड। लेकिन कंकरेंट एग्जीक्यूशन में ऐसा नहीं होता है। There can be cases where simple changes in the execution sequences of transaction may result to totally different cases. लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें ट्रांजेक्शन्स को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराना है और इसलिए हम कंकरेंट शेड्यूल बनाएंगे। लेकिन हम डेटाबेस के कंसिस्टेंटी को वो इंश्योर करने के लिए हम कंकरेंट शेड्यूल्स एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन ये इंश्योर करेंगे कि उसका एग्जीक्यूशन वैसा ही है जैसा हम सीरियल शेड्यूल एग्जीक्यूट करते तो होता। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि चूंकि वो सीरियल नेचर में एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमारा आउटपुट जो होगा हमेशा कंसिस्टेंट आउटपुट होगा, और चूंकि वो कंकरेंट शेड्यूल के रूप में एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमारा जो रिस्पांस टाइम बढ़ेगा, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और सिस्टम यूटिलाइजेशन या मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। सो दिस इज वेयर वी से दैट टू ट्रांजेक्शंस आर। अब इस केस में देखो, ये भी एक शेड्यूल 4 है जिसमें सेम ट्रांजेक्शंस हैं, और यहां भी मैं ए की वैल्यू को 100 मानता हूं और बी की वैल्यू को मैं 200 मानता हूं। नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये सेम ट्रांजेक्शन यहां भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेम T1 और सेम T2, वही सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, बस हमने क्या करा है, इंटरलिविंग थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी थी? 200। यहां पे ए की वैल्यू क्या हुई? 100 थी, और यहां ए की वैल्यू क्या हुई? 50। लेकिन इसने ए की जो भी चेंजेस करे हैं अभी टेम्परेरली कर रहे हैं, दैट हैज नॉट बीन रिटन टू द डेटाबेस, वी हैव नॉट रिटन द वैल्यू। ये स्टेटमेंट यहां आ गया, तो व्हाट विल हैपन, अभी भी जो ये रीड ए ऑपरेशन होगा इसको ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 100 मिलेगी, और जैसे ये 100 मिली तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 10 हो जाएगी, और जब ये 10 हो जाएगी तो यहां पे ए की वैल्यू क्या बची? 90 बची। ठीक है,
अब जैसे इसने ए की वैल्यू 90 राइट करा तो डेटाबेस में क्या हो गया, 90 हो गई वैल्यू। और इसने रीड करी बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू इसको मिली 200। इसने राइट करा ए की वैल्यू, तो ये क्या राइट कर देगा, नाउ ए की वैल्यू क्या हो गई 50। इसने बी की वैल्यू रीड करा 200, यहां पे बी की वैल्यू क्या हो गई 250। तो इसने बी की फाइनल वैल्यू क्या राइट करी 250, और ये कमिट कर गया, इसने कमिट कर दिया। देन अब यहां पे बी की वैल्यू इसको क्या मिली 200, 200 में उसने टेम्प को ऐड किया तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 210। और इसने फाइनल जो बी की वैल्यू राइट करी वो क्या राइट करी 210। तो अब इस स्टेट में अगर आप देखोगे तो ए के ऊपर फाइनल राइट इसने करा, उसने कितनी लिखी 50, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 50, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 210। अब क्या है, ए प्लस बी 260 हो गया जबकि 300 होना चाहिए। यानी कि इस शेड्यूल के एग्जीक्यूशन से पहले का स्टेट और बाद का स्टेट वो कंसिस्टेंट नहीं है एक दूसरे के। प्लस जो सीरियल शेड्यूल था उसमें ए की वैल्यू 45 आ रही थी और बी की 255 आ रही थी, वो स्टेट भी प्रिजर्व नहीं है। दैट मीन्स दिस शेड्यूल इज नॉट इक्वलेंट टू द सीरियल शेड्यूल S1। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये शेड्यूल जो है सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, ये इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, या ये S1 के इक्विवेलेंट नहीं है। इतना क्लियर है? प्लीज आंसर। यस सर। ओके, सो सो और इंटेंशन इज हम कंकरेंट शेड्यूल या कंकरेंट एग्जीक्यूशन अलाउ करेंगे, वी विल फॉर्म कंकरेंट शेड्यूल, बट वी विल एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी। So what is serializability? The ability to produce a serial schedule equivalent to each concurrent schedule. तो अगर कोई concurrent schedule है और उसके करस्पॉन्डिंग एक सीरियल शेड्यूल में इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो उस शेड्यूल को मैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहूंगा, और इस प्रोसेस को हम सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं जब भी सीरियलाइजेबिलिटी की बात करेंगे, तो अब इसके डिस्कशन में मैं एज्यूम करता हूं कि ईच ट्रांजेक्शन प्रिजर्व्स द डेटाबेस कंसिस्टेंसी। अब हम बार बार चेक नहीं करेंगे, हम मान लेंगे, ये मान के चलते हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन मुझे मिला है तो इट हैज बीन एंश्योर्ड दैट द ट्रांजेक्शन विल प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ठीक है ना? एंड देन ये एश्योरेंस क्या एश्योर करेगा, ये एश्योर कर देगा कि अगर मैं इस ट्रांजेक्शन का सीरियल एग्जीक्यूशन करूंगा तो दिस serial execution will always lead to a consistent database, because every transaction is consistent, producing a consistent state, and therefore every serial execution will also produce a consistent state. ठीक है ना? So any concurrent schedule is serializable if it is equivalent to a serial schedule. So if I can prove that the given concurrent schedule is equivalent to a serial schedule, we say that the given schedule is a serializable schedule. And we have two types of serializability. One is conflict serializability and another one is view serializability. So we will discuss in the next transactions next lecture about these two types of serializability, the conflict serializability and the view serializability. And here onwards, अभी मैंने जो ट्रांजेक्शन के आपको दिखाए थे इसमें क्या है, रीड ए ऑपरेशन है, देन सम मैनिपुलेशन टू ए, देन राइट ए, देन अगेन रीड ए, सम मैनिपुलेशन टू ए। इसमें अगर देखो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये है, we read some value of a and we write the new value of b, we read some value of a, we write the new value of a, and so on. ये सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जो प्रोसेसिंग है, जो परमानेंट डेटाबेस के ऊपर नहीं होता, वो टेम्पररी वेरिएबल्स पे होते हैं, और फाइनल वैल्यू जो होती है परमानेंट डेटाबेस के ऊपर
लिख दी जाती है। तो यहाँ अनवर्ड जस्ट टू सिंप्लीफाई और स्टडी और जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे उनके रीड और राइट ऑपरेशंस के टर्म्स में, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज ये चीजें हमारे लिए मतलब ये होंगी, ऐसा नहीं है कि हम ट्रांजेक्शन में से ही हटा देंगे, लेकिन फॉर स्टडी पर्पज हम ये मान के चलते हैं कि अगर रीड ए और राइट ए है हमारे पास, इसका मतलब बीच के जो भी हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो जब भी मैं ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं रीड और राइट ऑपरेशन को के अलावा बाकी सारे ऑपरेशंस को इग्नोर कर दूंगा आगे के रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। एंड देन we assume that transactions may perform arbitrary computations on data in local buffers in between reads and write। हम ये assume करके चलते हैं कि जैसे ये read a और write a के बीच में जो भी है ये टेम्परेरी बफर के ऊपर हो रहा है, हमारे परमानेंट डेटाबेस के ऊपर नहीं हो रहा है, ये अगला एजम्पशन है। एंड therefore our simplified schedules will consist only of read and write instructions। तो यहां से हम जब भी शेड्यूल की बात करेंगे तो हम ट्रांजेक्शन्स के रीड और राइट इंस्ट्रक्शंस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। सो अब क्या होगा, अब इसी केस में अगर मैं इस शेड्यूल को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वी हैव T1 एंड वी हैव T2। सेम शेड्यूल कैसे हो जाएगा, पहले रीड ए आ रहा है T1 का, तो मैं रीड को R लिख रहा हूं, सो रीड ए आ गया। उसके बाद टेम्परेरी प्रोसेसिंग है, ये मान के चलते हैं बफर पे चल रहा है। उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट आया, राइट ए, तो अगला क्या हो गया, राइट ए। देन what happens, next one is read b, so read b will come here, then some temporary calculations and then finally write b। और उसके बाद क्या है, कमिट ऑपरेशन, so commit operation। So this is execution of T2 and then in T1 अब क्या आ रहा है, again read A in T1, then write A in T1 and then read B in T1, then write B in T1 and then finally the commit operation। सो अगर आप ये देखो तो हम ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, नाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, द कॉम्बिनेशन ऑफ रीड एंड राइट, क्योंकि एग्जीक्यूशन में हमारे यही इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर रीड ए और राइट ए हो रहा है तो इसके बीच का हम एज्यूम करते हैं कि ये टेम्परेली बफर के कैलकुलेशन हो रहा है। सो हियर ऑनवर्ड्स we will be talking about transaction only in terms of read and write operation। So this is all for today. Next class we'll be talking about two different types of serializabilities, the conflict serializability and the view serializability, that we'll be discussing in the coming lectures। So hope everybody got what I have taught today. Yes, sir. Okay, thank you very much। So okay, so next class will be proceeding, I'll be calling your roll numbers then रोल नंबर बताते जाना अपना। अभिषेक राजपूत, रोल नंबर 2 सर। रोल नंबर 2,